So I welcome you to this and another class of microprocessors. So let us start. So the topic for the day is memory banking. So we were discussing memories in the previous lecture. Previous lecture, what we did, we studied the memory segmentation. So memory segmentations, we have seen that how the different four segments are divided into the memory, that segments and how much memory was allocated to them. And then we have studied the overlap thing. I hope you remember all those things. So the topic for the day, as I told you, is the memory banking. So there is a difference between memory banking and the memory segmentation. Segmentation is different. Segmentation is how much memory you allocated to the different segments which are there in the microprocessor 8086. Okay. Now today we will talk about the memory banking. So before going to this topic, that is memory banking, so let us firstly understand this thing and let us recap a few things which we have discussed while we were discussing the architect part. So let us understand. I hope you all are I hope you remember that the size of address bus was 20 bits. Okay. So depending upon the size of address bus, we have figured out how many addresses were there in the memory. So we have calculated that the addresses in the memory are ranging from 00000 to FFFFF. I hope you remember this thing. So Yes, sir. the problem associated, first of all, we'll talk about the problem. What is the need of this banking? So then on later on, we'll resolve how we resolve this problem. Now the problem is our data bus is of 16 bits. Okay, I hope you remember. Now your micro processor, हमने पिछले lectures में हमने अपना read and write cycles पढ़े थे हमने. How to fetch the data from the memory, how to reading and writing cycles जिसको हमने बोला या जिसको timing diagrams बोला. So we have seen कि microprocessor 8086 is capable of fetching the data from the memory, or you can say the writing the data into the memory is in one cycle. ठीक है, जो उसका एक साइकिल था, आई होप यू रिमेम्बर, उसमें 4 टी साइकिल थे, T1 T2 T3 T4, जिसको हमने कहा था एक मशीन साइकिल है. तो वी वांट देन इन अ कंप्लीट वन साइकिल इट शुड बी I mean microprocessor 8086 is capable of writing all the data from the memory. Now what is the problem? Problem is your microprocessor is having data bus of 16 bit. Memory size is of 1 MB. I hope you remember that 2 raised to power 20, that was equal to 1024. Okay, so precisely you have written that thing to the 1 MB. Okay, now there are 1 million memory locations in the memory. Okay, now one memory location can carry 1 byte of data. Now please pay attention to the words. What I'm saying is there are 1 locations. I'm saying 1 million memory location. मतलब मेरे पास 1 million addresses हैं और हर एक एड्रेस पे कितना डाटा हो सकता है? 1 बाइट, मतलब एक 8 बिट. इज इट क्लियर जितना मैंने बोला? 1 मिलियन मेमोरी लोकेशंस हैं. 1 मिलियन मेमोरी लोकेशंस पे हर एक लोकेशन पे, लेट अस से कि पहली लोकेशन है 00000 पे कितना डाटा हो सकता है? 8 बिट डाटा हो सकता है. ठीक है, या 1 बाइट डाटा हो सकता है. अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरा माइक्रो प्रोसेसर, मतलब वो एक पर्टिकुलर साइकिल में 16 बिट डेटा फेच कर सकता है. मैंने क्या बताया आपको? जो डेटा पड़ा है एक मेमोरी लोकेशन पे वो कितना है? 8 बिट. माइक्रो प्रोसेसर कितना फेच कर सकता है? 16 बिट. ठीक है, तो हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे करें? आप कहोगे कि सर 2 मेमोरी लोकेशंस उठा लो एक साथ. ठीक है, आई से कि कैसे? बिकॉज आपको अगर ध्यान हो, जो एड्रेस में भेजता हूँ माइक्रो प्रोसेसर में, वो एक ही मेमोरी लोकेशन का जाता है एक साइकिल में. सबसे पहले एड्रेस ही जाता है ना. आई होप यू रिमेम्बर दीज 3 स्टेप्स, दैट इज फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन. तो फर्स्ट थिंग इज द फेचिंग साइकिल
only single address goes to the microprocessor. मतलब अगर मेरी memory location 000 है, okay, let me share one screen with you. Let me show you this thing in visually. I hope the screen is visible. Is it visible? Please say yes or no. So now see, मैंने क्या कहा, टेबल में एक्सटेंड कर देता हूँ. I have, as what I said my addresses are starting from this 000 and the last address is this FFFFF. Okay, so मेरे को मेरा माइक्रो प्रोसेसर कैपेबल है 16 बिट डेटा को ट्रांसफर करने का, इधर और मतलब चाहे वो री. प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरी एड्रेस बस है उस पे मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, लेटर से ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है. इस एड्रेस पे डेटा पड़ा है लेटर से ये 34. ये 34 कितने बिट का डेटा है? हु विल टेल मी? हु विल टेल मी प्लीज आंसर. 34 कितने बिट का डेटा है? Please hurry up. I don't have much time. Who will tell me 34 कितने बिट का डेटा है? सर 6 बिट का. कितना? Sorry, I was not able. Yes. कितना? 4 byte. It's not about 4 bytes. It's basically जो भी आपका डेटा है वो 8 बाइट्स का होता है. जितना भी आपका डेटा होता है 8 बाइट्स का होता है. आप याद करो कि जो आपके रजिस्टर बैंक्स थे जितने भी थे वो 8 बाइट, सॉरी बाइट कह रहा हूँ, 8 बिट्स के थे, मतलब 1 बाइट के थे. जितने भी आपके रजिस्टर बैंक थे वो 1 बाइट के थे, मतलब एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन. अभी मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन में बताया, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आपका कितने बिट का डेटा सेव हो सकता है. आपका एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आपका 8 बिट का डेटा स्टोर हो सकता है, या 1 बाइट का, जिसको हमने बोला 1 बाइट का डाटा स्टोर हो सकता है. अब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर 8086 है, या अगर मैं एडवांस प्रोसेसर हूं, तो दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा जितना उसका एड्रेस बस का साइज है. माइक्रो प्रोसेसर 8086 की एड्रेस बस का साइज है 16 बिट, so it is capable of transferring 16-bit data in single cycle. Data which is available on memory is of 8-bit. Let us say कि अब आपने अब जो आप एड्रेस भेज रहे हो, आपने एड्रेस भेजा 00001. उस एड्रेस पे क्या डेटा पड़ा है? 12. Now what you want कि आप ये दोनों के दोनों 16-bit डेटा ट्रांसफर करो. तो 16 बिट डाटा कैसे ट्रांसफर होगा? वो तो एड्रेस बस से डेटा बस से हो जाएगा, बिकॉज डेटा बस इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग 16 बिट ऑफ डेटा. डेटा बस का साइज 16 बिट का है ना. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ वन डायग्राम. ओके, यस. सो दिस इज योर 8086 और ये आपका मेमोरी है जो इस तरफ आप देख रहे हो. मेमोरी लोकेशंस आपकी 000 से FFFF तक है. तो पहली लोकेशन पे लेट से 34 जो डेटा पड़ा है दैट इज 34. दूसरी लोकेशन पे लेट से जो डेटा पड़ा है दैट इज 12. ओके, एंड यू वांट टू ट्रांसफर दिस डेटा टू 8086. आपकी 80 ट्रांसफर कर दिया, बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज आपको तो कंप्लीट डेटा चाहिए. आपको डेटा चाहिए ये पूरा 1 2 3 4. अच्छा, एक बात और है, बिफोर मूविंग फर्दर हमेशा याद रखो ये बात कि कोई भी प्रोसेसर है, i9 प्रोसेसर्स हैं, आपका जो हायर जो एड्रेस है, जैसे इस केस में आपका जो हायर एड्रेस है दैट इज 00001. लोअर एड्रेस क्या है? 00000. ठीक है. So higher address represents the higher bit of the data.
मतलब if this data is complete data of 16 1 2 3 4, I'm writing over here, so data is 1 2 3 4 basically 3 4 1 2 3 4. So this is the data. Okay, I'm again repeating, your higher address bit represents the higher most significant bit, जिसको आप बोलते हो most significant bit of the data. So 1 2 3 4 is the data. प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो 20 बिट एड्रेस बस है वो एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है, ना कि दो. डेटा आपको दो मेमोरी लोकेशन से उठाना है क्योंकि आप 16 बिट डेटा चाहते हो. एक मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करती है 8 बिट को. तो प्लीज टेल मी, ये प्रॉब्लम आपको समझ आई है? जो मैंने प्रॉब्लम रेज की है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही मेमोरी बैंकिंग है. तो अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ आई है तो मेमोरी बैंकिंग समझ आ जाएगा. ओके फाइन, थैंक यू. सो अब क्या चाहता हूं मैं कि मैं चाह रहा हूं अब इट इज सिंपल सॉल्यूशन कैसे निकाला. यू कैन सी योर बुक्स, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, यू कैन सी योर बुक्स. तो जब आप अपनी बुक ओपन करते हो तो आपके पास जो पेज नंबर आते हैं, अगर आप देखते हो, अगर आपकी बुक एक मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रही है तो जो सीक्वेंस में आते हैं, आपके लेफ्ट साइड में आएगा पेज नंबर इवन और राइट साइड में आएगा पेज नंबर ऑड. ठीक है, जैसे पेज नंबर 74, पेज नंबर 75, उसके बाद आप पेज टर्न करोगे तो पेज नंबर 76, पेज नंबर 77. दिस इज हाउ योर जो बुक है वो बाइंड की जाती है उसमें. तो एक शॉट में आपको एक टाइम में आपको another one is 77. या टेक अनदर एग्जांपल 3435. तो जो पेज नंबर है, यस यस प्लीज. सर आपकी वॉइस बीच में रुक रुक के आ रही है. Is it everyone is facing the same problem? Yes sir, problem है सर, वॉइस में बहुत करता था. Okay, let me change the network. So now I am audible. ठीक है, अभी तो नहीं ब्रेक हो रही वॉइस. I have changed the network. Is it okay now? Please say yes or no in the chat box. Yes sir. Okay, fine. तो आकाश is asking sir, प्रॉब्लम समझ नहीं आई. आकाश, प्रॉब्लम है, हमने मेमोरी सेगमेंटेशन कर लिया, आज हम मेमोरी बैंकिंग की बात कर रहे हैं. बैंकिंग में हम बात करेंगे कि why we need banking. Banking separating the odd address, we are separating the even address. I'm giving you one problem. मैंने कहा कि सर अभी तक मैंने टाइमिंग डायग्राम्स और रीडिंग और राइटिंग साइकिल के पढ़े, उसमें मैंने देखा कि my capable of transferring data in one cycle, and how much data it can transfer in one cycle, that is 16 bit. And my memory and address bus can transfer one memory location. I mean address bus can send the address of one memory location. Address bus 20 bits की है, हर एक bit जैसे कि ये 20 bit किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसको पहला, दूसरा, या ये FFFF. तो ये सारी क्या है, मेमोरी लोकेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 000 टू FFFFF. तो एक मेमोरी लोकेशन पे कितने डाटा स्टोर हो डेटा. But our microprocessor 8086 is capable of handling, its data bus is capable of handling 16 bit of data. So what I want its full efficiency. I want to transfer that 16 bit data simultaneously, consecutively जिसको आप बोलते हो. आप consecutively वो 16 bit data एक साइकिल में ट्रांसफर करना चाहते हो. तो स्टूडेंट्स कैन आंसर कि सर ठीक है, हम तो फिर साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों नहीं किया कि यहाँ पर 16 बिट का ही रजिस्टर बना दिया जिसमें 16 बिट का डाटा स्टोर हो सकता है. या जैसे अभी एडवांस प्रोसेसर है 32 बिट के बाद 16 बिट के बाद 32 बिट के प्रोसेसर आए. अभी 64 बिट के आप प्रोसेसर देखते हो, आपका जो नॉर्मल सिस्टम आप देखते हो वो 64 बिट का ही देखते हो ना आप. 64 बिट का या मैक्सिमम किसी के पास 128 बिट का होगा. तो लेट मी जस्ट शो यू another thing.
Just a second. Just a second, I'm not able to share my screen. So now the screen is visible. I just typed this. I just typed Google. Now you can see the types of RAM. I hope you can see. Okay. So now you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, या इस तरह से 1, 2, 3, 4. तो कोई भी रैम पे आप ये देखो जो मेमोरी की चिप लगी हुई है वो किस हिसाब से लगी हुई है. इट इज रिप्रेजेंटिंग 8888 बिट काइंड ऑफ, मतलब इट्स नॉट की 8 बिट ऑफ डाटा, वो आपके 8 बिट इवन एड्रेसेस, 8 बिट ऑड एड्रेसेस. तो जैसे अगर 64 है तो यहाँ पर 4, अगर 32 बिट है तो 1 2 3 4, 16 बिट होगा तो 2 चिप होंगी, 8 बिट होगा तो 1 चिप होगी. लेकिन जैसे 8085 जो प्रोसेसर, उसका जो डेटा बस है वो 8 बिट का है. ऑल्दो हमने 8085 प्रोसेसर नहीं पढ़ा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि 8085 प्रोसेसर का जो डेटा बस है वो 8 बिट का है. दैट्स व्हाई वी डू नॉट नीड मेमोरी बैंकिंग इन दैट पर्टिकुलर केस. ने उसके ऊपर के प्रोसेसर है, लेट अस से 8086 या और जो आज के प्रोसेसर्स हैं, उसमें जो आपकी डेटा बस है दैट इज 16 बिट और मोर देन 16 बिट. सो यू, because it is 16 bit or more than 16 bits, you have segregated your memory into the banks, even and odd banks. Now you will be saying, sir, 16 bit के केस में तो समझ आ गया कि 2 बैंक होंगे, 32 में 4 बैंक कैसे? I'll tell you कि कैसे, और 64 में 8 कैसे. उसका कारण क्या है कि let me give you one example. Let us say कि अभी जैसे demonetization हुआ, ओके, तो अगर demonetization में हम जो मैक्सिमम करेंसी साइज है वो 2000 रुपीज का है, ओके. तो अगर मैं छोटे नोट जो हैं, लेटर से 10 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, मैं बिल्कुल बंद कर दूं और सिर्फ 2000 का नोट रखूं मार्केट में, डू यू थिंक दिस इज फिजिबल? कोई भी चीज जो है, मैं 2000 का नोट दे रहा हूं और सामने वाले शॉपकीपर के पास भी 2000 का ही नोट है, तो कोई चीज 10 रुपए की या 20 रुपए की है, डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? नो सर. Yes, the same things applies in the memory. Memory में भी क्या है कि you want to increase the capacity of the memory, that is okay. कि आप 1 MB से 1 terabyte तक की भी memory रखो, that is perfectly okay. But point is कि आप उसका जो denomination है वो जितना small रखो उतना best है. Denomination मतलब 8 bit जो मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर आपके पास 1 रुपया या 2 रुपए हैं, that is denomination, कि वो बड़ी करेंसी का denomination जिसको आपका change, exchange. तो अगर वो डिनोमिनेशन जितना छोटा होता है, चाहे जितना मर्जी एडवांस प्रोसेसर हो, उसका जो डिनोमिनेशन है दैट विल बी ऑफ 8 बिट. उसका कारण क्या है कि मिनिमम जो डेटा साइज हो सकता है वो 8 बिट का हम मान के चलते हैं, 8 बिट का हो सकता है. उसके ऊपर जितना भी डाटा है वो दूसरे रजिस्टर, तीसरे रजिस्टर, चौथे रजिस्टर्स में हो सकता है. आपका जो मेमोरी का साइज है वो 1 टेराबाइट हो सकता है, लेकिन जो मेमोरी का डिनोमिनेशन है वो 8 बिट का है. आई होप दिस पॉइंट क्लियर. Yes, sir. I hope this point is clear. Okay, now you do one activity with me. आपके पास जो मेमोरी है वो किस तरह से, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. आप आपके जो दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों में आपके जो 4 उंगलियां हैं, ठीक है. तो लेट अस से कि जो लेफ्ट साइड की 4 फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके ऑड मेमोरी बैंक को, और जो राइट साइड की 4 फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके इवन मेमोरी बैंक को, ठीक है. तो हाउ दिस allocated to the microprocessor, तो वो लेफ्ट साइड की 4 फिंगर्स और राइट साइड की 4 फिंगर्स यू कैन मर्ज, ठीक है. आपने लेफ्ट साइड की 4 फिंगर्स के ऊपर लिख दिया 0 2 4 6,
राइट साइड की 4 फिंगर्स के ऊपर लिख दिया आपने 1 2 3 4 और इन दोनों को जंगल कर दो एक तरह से बीच, ठीक है, समझ गए कैसे? 0 के बाद 1 आए, 2 3 4, तो इन दोनों को मर्ज कर दो। जैसे आप दोनों को मर्ज कर दोगे तो दिस इज हाउ योर मेमोरी इज गिवन इन एनी माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो चिप्स आप देख रहे हो जो मैंने आपको गूगल पे दिखाई, ये यही रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब चाहे वो 32 बिट का 4 बिट का है आपका अगर डेटा बस, तो उस डेटा बस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 64 बिट का डेटा बस का क्या मतलब है? इट कैन टैकल अप टू 64 बिट्स ऑफ डाटा इन अ सिंगल साइकिल। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, टैकल 64 बिट्स ऑफ डेटा इन अ सिंगल साइकिल। हमारा जो 8086 प्रोसेसर है, इट इज ऑफ 16 बिट प्रोसेस, इसका डेटा बस है दैट इज ऑफ 16 बिट, so it means it can transfer the data which is of maximum size of 16 bit. Now that 16 bit is divided into two portion, not data. Now I'm not at all talking about the data, now I'm talking about memory. मेमोरी से डेटा उठाती है। अब वो मेमोरी जो है उसमें हर एक जो डिनोमिनेशन है जिसकी मैंने बात की, मतलब वो हर एक जो डिनोमिनेशन है वो एक रुपया है। टोटल रुपए लेटर से सबसे बड़ा नोट 2000 का है, तो टोटल 2000 है। जो मेमोरी की डिनोमिनेशन है, लेट्स से कि मेरी मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है 1024, या जिसको मैंने कहा 1 MB, 1 मिलियन लोकेशन है। हर एक मिलियन लोकेशन 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। लेकिन मेरा डाटा बस है वो 16 बिट को टैकल कर सकता है। तो उसको आसान करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने मेमोरी को डिवाइड कर दिया इवन एंड ऑड में। जैसे बुक में होता है पेज नंबर 0 पेज नंबर 1 पेज नंबर, सो आई कैन सी एक नजर में 2 पेजेस देख रहा होता हूँ बुक ओपन करता हूँ। सेम कंसेप्ट अप्लाइड फॉर द मेमोरी कि जब फेच करूं तो मेरी 2 कंसेक्यूटिव, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, प्लीज मेक श्योर आई एम यूजिंग दिस वर्ड कंसेक्यूटिव, तो मेरी 2 कंसेक्यूटिव लोकेशन से डेटा आ जाए। वो डेटा कितना आएगा? अगर बड़ा प्रोसेसर है तो 4 कंसेक्यूटिव लोकेशंस हो सकती हैं, 8 कंसेक्यूटिव लोकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। जैसे 64 बिट का है और डेटा आपका डेटा 64 बिट का है, 64 बिट्स का फेच करना है, तो कितनी कंसेक्यूटिव लोकेशंस होंगी? 8 कंसेक्यूटिव लोकेशंस 8 बिट की। ओके, आई होप नाउ यू गॉट दिस पॉइंट। यस सर। अभी हम गिविंग यू द फाउंडेशन, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। Shall we move further? Please say yes or no in the chat box. Y or N. You just simply type Y or N. I need response from more people. 3 या 4 क्लास में नहीं है, there are 64 people in the class. Okay, fine. So let me take you further. Now अब अगला क्या है कि मैंने कह दिया कि अब 16 बिट डेटा मेरे को फेच करना है मेमोरी से। मेमोरी से फेच कैसे कर सकता हूँ? मैं 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस को एक साथ लेकर चलता हूँ, और वो 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन कौन सी है? इवन एंड ऑड। एंड ऑड, नॉट ऑड एंड इवन, आई एम सेइंग वो 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस कौन सी हैं? इवन एंड ऑड। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। जीरो भी लिख देता हूँ। जो अगली लोकेशन होगी वो ये होगी, लेट अस से 00001, तो अगली लोकेशन होगी आपकी 10, इससे अगली लोकेशन होगी ये आपकी 11। ओके, सो सिमिलरली आगे चलते जाएंगे। तो ये जो है, अगर आप कलर स्कीम देख पा रहे हैं, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव लोकेशंस है 0 एंड 1। अगली कंसेक्यूटिव लोकेशंस कौन सी है? 2 एंड 3। अगली कंसेक्यूटिव लोकेशंस कौन सी होगी? 4 एंड 5। अब क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है, सर कंसेक्यूटिव लोकेशन तो 1 एंड 2 भी है, मतलब ये और ये भी कंसेक्यूटिव लोकेशंस हैं। यस, these are consecutive locations, but these 2 consecutive locations cannot be fetched in single cycle. Reason being, the address is starting from the old location. Have you got this thing? What you want your address should start from even location, so that you will get the consecutive location. So अगर आप लेट से कि मैं यहाँ पर एक और इस लोकेशन पे जो डेटा पड़ा है, दैट डेटा इज लेट से 4 5। ओके, सो कंसेक्यूटिव लोकेशन का मतलब क्या है कि मैं अगर मेरा लोअर इवन है तो मेरा इन 2 कंसेक्यूटिव लोकेशन का आंसर क्या होगा? वो होगा 1 2 3 4। और अगर मैं इन 2 कंसेक्यूटिव लोकेशंस की बात कर रहा हूं तो
वन और टू चीज को मैंने कहा, जो कि अभी अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं है, आगे चल के बताऊंगा कि इनसे भी फेच कर सकते हैं, वो देखेंगे कैसे। अब इन दो functions का जो एड्रेस एड्रेस है दैट इज 1 and 2, और पे जो डेटा है वो क्या आएगा 1245। यू कैन सी मैंने आपको क्या बोला कि आपका जो ऑड है एड्रेस आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर बड़ा एड्रेस क्या है दिस, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होना चाहिए 4512। आंसर क्या होना चाहिए 2, बट बिकॉज दिस एड्रेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑड, तो मे बी हो सकता है कि ये गड़बड़ करे कि ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे ये हायर ऑर्डर एड्रेस है, और वन साइकिल में कैसे, अभी जो मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ, ये जो एरर की बात कर रहा हूँ, इसको बताता हूँ। इसको हम, देयर आर टू टर्म्स जिसको हम बोलते हैं अलाइंड डाटा एंड मिस अलाइंड डाटा या नॉन अलाइंड डाटा। क्या है कि जो हमारा एक ही साइकिल में फैच हो जाए, जैसे कि ये हमारा ये वाला डेटा है क्या फ्रॉम टू मेमोरी लोकेशंस, तो आंसर इज 1 2 3 4, so this is aligned data. This is non-aligned data. Yes, it is consecutive address, but this is non-aligned data. I'll show you कि वो non-aligned क्यों है, क्योंकि you cannot fetch this data in a single machine cycle. The reason being, this is different memory location, this is different memory location. इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताऊं, मैंने भी आपको बुक का एग्जांपल दिया था, तो लेटेस्ट से जब आप बुक खोलते हो तो आपके लेफ्ट साइड पे पेज नंबर आता है 76 77, ऐसे ही होता है, इवन एंड ऑड, लेफ्ट साइड में ऑड। तो आपका कंसेक्यूटिव एड्रेस क्या हो गया 76 77। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि 77 एंड 78 आर आल्सो कंसेक्यूटिव, तो आप क्या उसको एक नजर, आपको उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, पेज पलटना पड़ रहा है। आप उसका साइकिल, सेकेंड साइकिल को आप मतलब जो दूसरा एड्रेस है वो आपको सेकंड साइकिल में उठाना पड़ रहा है। 76 77 मैंने कहा आप एक ही नजर में देख रहे हो, तो नजर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है वन कंप्लीट साइकिल, बिकॉज यू कैन फेच even and odd consecutive address in a single cycle, but 77 is on different pages on a different view, so you cannot fetch these two addresses simultaneously. I'll show you in context of microprocessor how, but before going to that thing, have you understood कि जितना मैंने आपको बताया? Okay, Yes, fine, sir. fine. So आगे बढ़ते हैं। इसको करने के लिए अब मैंने क्या किया, मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। Is the slide is visible? जो मैं लिख रहा हूँ, is it visible to you people? Yes, sir. Okay, fine.
तो मैंने अब यहाँ पर एक आपको एक मेमोरी बैंक दिखाने की कोशिश की है, सॉरी एड्रेस बस दिखाने की कोशिश की है। सो मान के चलते हैं ये आपकी एड्रेस बस है, तो आप देखो जो मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द कंप्लीट एड्रेस बस, तो दीज आर द एड्रेसेस जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। सो इफ यू सी, जो मैं बात कर रहा हूँ कि कंजिक्यूटिव एड्रेस की, so this 0 and 1 are consecutive, I said, and I said this 1 and 2 are not consecutive. consecutive कौन कौन से हैं? ये एक कोशिश करता हूँ एक टेबल और बन जाए इसके साथ में, अगर चलो मैं यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूँ, तुम समझ लेना। ये मैंने कहा 0, ये है यूज कर लेता हूँ लिखने के लिए। ये 0, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। आई एम सेइंग कि जो कंजिक्यूटिव लोकेशन है वो कौन सी है? 0, 1, 2, 3, सिमिलरली 4, 5। Why these two are not consecutive? One and मतलब these two are obviously consecutive, but why they cannot be fetched in a single cycle? One and two. Reason being, अब आप देखो, जब मैं even odd की बात कर रहा हूँ, मतलब की बात कर रहा हूँ, कौन सी बिट चेंज हो रही है? सिर्फ A0, इसको अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ सिर्फ इस चीज को, तो अगर मैं 0, 1 की बात कर रहा हूँ या 2, 3 की बात कर रहा हूँ या 4, 5 की बात कर रहा हूँ, तो कौन सी बिट चेंज हो रही है? A0 कहां से चेंज हो रही है? 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। लेकिन अगर मैं ऑड की बात कर रहा हूँ, कंजिक्यूटिव ऑड रेस्ट की, 1 से 2, लेट अस से 3 से 4, तो आप देखोगे कौन सी बिट चेंज हो रही है? 1 से जब मैं 2 किया, ऑब्वियसली A0 चेंज हुई है, इसके साथ ये भी चेंज हो गई, A1 भी। 3 से अगर 4 में गया तो ये भी चेंज हुई है, ये भी चेंज हुई है, ये भी चेंज हुई है। लेकिन अगर आ रहा हूँ, इफ यू आर सीइंग अगेन, ध्यान से देखो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इवन में जा रहा हूँ, 0 से 1 जा रहा हूँ, तो सिर्फ A0 चेंज होता है। किसी भी केस में देख लो, किसी भी केस में आप देख सकते हो, अगर मैं इवन से ऑड में जा रहा हूँ, मतलब 0 और 1 को अगर मैं एक साइकिल में फेच करना चाहता हूँ, उसमें इजीनेस क्या है? बाकी सारी बिट सेम रहेंगी, सिर्फ ये वाली बिट चेंज हो रही है, A0। 2 से 3 में गया, A0 चेंज हो रही है, रेस्ट आर सेम। उसके बाद 4 से 5 में गया, सिर्फ ये बिट चेंज हो रही है, A0, रेस्ट आर सेम। बट अगर मैं 1 से 2 में जा रहा हूँ, तो ये भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रही है। उसके बाद 3 से 4 में जा रहा हूँ, तो ये भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रही है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा तो और भी चेंज होंगी। सो moving from odd location to even location, there are several bits in the address bus which are changing, although they are consecutive address. What I want, but करना क्या चाहता हूँ, I want, if I give the microprocessor and I want to fetch a 16-bit data, and if I give microprocessor the lower address, I mean this address, अगर मैं देखूं lower address 0th पोजीशन का या 2nd पोजीशन का या 4th पोजीशन का, तो की जो कंजिक्यूटिव लोकेशन है, कंजिक्यूटिव कौन सी? फर्स्ट लोकेशन, थर्ड लोकेशन, फिफ्थ लोकेशन, वो अपने आप फेच कर ले। इज इट ओके? इतनी बात क्लियर हुई? Why this consecutive locations में even odd एक साइकिल में डेटा फेच कर सकते हैं, ऑड इवन एक साइकिल में डेटा फेच नहीं कर सकते। इज इट अंडरस्टूड? Yes, प्लीज sir. से यस और नो। ओके फाइन। तो ये है हमारा प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन हमने क्या बताया कि हम मेमोरी बैंकिंग कर ले। कैसे मेमोरी बैंकिंग कर ले? इवन ऑड, मतलब आप बुक खोल के देखो, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट एग्जांपल, इवन ऑड आपको एक दिखता है, लेकिन ऑड इवन के लिए आपको पेज पलटना पड़ता है। सो सेम कांसेप्ट इज अप्लाइड ओवर हियर। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, कुछ बातें जो अभी हमने सीखी, अभी तक क्या सीखा कि आपका लोअर डिनोमिनेशन कितना है, 8 बिट का है। मेमोरी का साइज कितना भी हो सकता है, किसी भी मेमोरी में, एडवांस से एडवांस प्रोसेसर में आपका मेमोरी का लोअर डिनोमिनेशन कितना है, 8 बिट का। ठीक है,
डेटा बस आपकी कितने भी साइज की हो सकती है, 16 की, 32 बिट की, 64 बिट की। हम 86 प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, इसमें 16 की है। डेटा बस अगर 64 बिट की है तो आपका मिनिमम जो डिनोमिनेशन है वो कितना रहेगा, 8 बिट का। तो 8 बिट कितने वो रहेंगे मेमोरी बैंक्स, 8। ठीक है, उसके बाद हम उन मेमोरी बैंक को विजुअलाइज कैसे करते हैं, या उसको माइक्रो प्रोसेसर कैसे विजुअलाइज करता है, इवन ऑड। इवन ऑड, नॉट ऑड इवन। ठीक है, इवन ऑड में क्या है कि डाटा हमेशा आपका सिंगल साइकिल में फेच होगा, 16 बिट डेटा। ठीक है, ऑड इवन में सिंगल साइकिल नहीं लेगा, वो 2 साइकिल लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि बिट्स आर वेरिंग, एड्रेसेस आर वेरिंग, although they are consecutive but addresses are varying. So this is the thing which we have discussed up till now. Any doubts up till now? So okay, so now moving further, now let us come to the exegetical solution of this is, आपको अगर यहां तक की बात समझ आ गई तो जस्ट टॉपिक सिर्फ 2 मिनट का रह गया अब। तो अब आपने क्या किया, इज द स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल? Yes, sir. ओके, सो अब आपने क्या किया, आपने मेमोरी को, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 MB मेमोरी है, तो आपने 512 एंड 512 दो बैंक ले लिए आपने। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया, ऑड एड्रेस, यहां से आपने इवन एड्रेस। तो जब ऑड एड्रेस निकालना है, इवन एड्रेस निकालना है, तो A0 क्या होना चाहिए, 0। ऑड एड्रेस निकालना है तो A0 क्या होना चाहिए, 1। आई होप इट इज क्लियर। सो हम A0 को डिफरेंट ही रख लेते हैं। अब आप देखो एड्रेस बस, मैं सिर्फ कहां से कहां तक भेज रहा हूँ, A1 से A19। A0 will tell me कि what address I am sending. I am sending even address, so it will fetch the data from this memory, and उसका consecutive odd it will fetch from here. Okay. Now वो data fetch होकर कहाँ आ जाएगा, data bus में। Is it clear? ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़े। सो अब हमारे पास 16 बिट का जो प्रोसेसर है, हमारे पास क्या क्या हो सकता है, हमारे पास डेटा कितने टाइप का हो सकता है, डेटा 4 बिट का हो सकता है। पहला 8 बिट, 8 ही बिट चाहिए। लेटर से हमें, जो मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया था, हमें 34 ही फेच करना है, मतलब 8 ही बिट का डेटा चाहिए मुझे। जरूरी नहीं कि हर बार मैं 16 बिट का ही डाटा चाहिए। तो हमें हो सकता है 8 बिट का इवन डाटा चाहिए, हमें हो सकता है 8 बिट का ऑड डेटा चाहिए, हमें हो सकता है 16 बिट का इवन डेटा चाहिए, और लास्ट हमें क्या हो सकता है, 16 बिट का ऑड डेटा चाहिए। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें लेक्चर समझ आया है अभी तक का, तो इसमें से कौन सा, जो मैंने आपको वर्ड बोला था एक, कि अलाइंड एड्रेस होगा, और कौन सा नॉन अलाइंड होगा या मिस अलाइंड होगा? मतलब इनमें से ये जो 4 टाइप आप देख पा रहे हो, इनमें से कितना, कौन कौन से वाले जो हैं वो सिंगल साइकिल में आएंगे, और कौन कौन से डबल, मतलब मल्टीपल साइकिल्स में, जिसको मैंने कहा मिस अलाइंड डेटा या नॉन अलाइंड डेटा। प्लीज टेल मी, हरी अप। यू कैन यूज 1 2 3 4। मुझे बताओ कौन कौन से इवन में आएंगे, कौन कौन से ऑड में आएंगे। जस्ट टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। एनीवन फ्रॉम योर साइड? नो वन? अरे अभी तो बताया आपको कि देखो, सी, अगर 8 बिट का इवन डाटा है, 1 साइकिल में आएगा। 8 बिट का अगर ऑड डेटा भी है तो 8 बिट का ही, तब भी 1 साइकिल में आ जाएगा, डजेंट मैटर। ठीक है, हम A0 से ऊपर वाली बिट उठ रहे हैं। ठीक है, 16 बिट का डेटा है इवन एड्रेस से, इसका मतलब दो, अब 16 बिट का डेटा है, स्टार्टिंग कहां से है उसकी, इवन एड्रेस से। ये भी सिंगल एड्रेस में आ जाएगा, 2 कंसेक्यूटिव एड्रेस, 0 1, या लेट अस से 2 3, या लेट अस से 4 5, या लेट अस से इसी तरह से 34 36, या कोई और लोकेशन। ठीक है, तो ये तीनों ऊपर वाले तीनों कौन से हैं, अलाइंड डाटा हैं, जो सिंगल साइकिल में आ जाएंगे। और लास्ट वाला जो है 16 बिट डेटा फ्रॉम ऑड एड्रेस इन नॉन अलाइंड डेटा है, जो 2 साइकिल में आएगा। ठीक है, so is it clear now? Is it clear now? Yes, sir. ठीक है,
तो अभी हमारा ये जो टॉपिक है इसमें क्या रह गया है, इसमें अब ये चारों का हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन डेटा कैसे फेच करते हैं. We'll see that thing in the next lecture. So I'm just stopping here. I hope the problem to you people is clear. What is this memory banking is, why we need memory banking, and how, what is the solution of how we can embed this even and odd addresses. So we'll see all these 4 cases in the next lecture. So I'm